کلام کے لفظوں کو میری خدا ہم یہ دعا مان کر پا لیتے ہیں. آمین آمین. دعوت کے بڑے ہی عظیم خاندان فاسٹ چرچ کو خدا کی خدمت ہے تاکہ کلام کے لیے ویلکم کریں گے. زوردار تعلیم تھینک یو کہیں گے دل سے قاسم. مجھے تو پتا نہیں تھا بس 22 ہو گئی. آپ کے یہاں دیکھیں. تھینک یو. غلام یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. آپ کے ساتھ ہی ہو. غلام جو بھلا ہے اور اگر وہ بھلا ہے اور واقعی وہ بھلا ہے تو وہ ہمارے لیے بھلائی ہی چاہتا ہے. جب ہم خدا یہوہ پاک خدا کے نام کے وسیلے سے اکٹھے ہوتے ہیں اور یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلے سے اس کے تخت کے سامنے آتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے, ہمارے لیے نیکی کرتا ہے اور اس کی نیکی بلیسنگ, ریسٹوریشن, ڈیلیورنس پھر آتی ہے. جب ہم گیتوں کو گاتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, حمد کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, ستائش کرتے ہیں, مدح سرائی کرتے ہیں تو خداوند کا جلال ہمارے درمیان میں اتر آتا ہے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. اس لیے ہمیں سارے دل, ساری جان, ساری طاقت کے ساتھ اس کی حمد کو, اس کی تعریف کو, اس کی ستائش کو کرنا چاہیے. کیونکہ ابلیس شیطان حالات اور واقعات, انفلوئنس, پینڈیمک, پیسٹیلنسی, کرونا یا اس طرح کے جو حالات ہیں ہماری زندگیوں کے خلاف, ہمارے کیریئر کے خلاف, ہماری ہیلتھ کے خلاف ہیں. لیکن خداوند کا فضل اگر ہماری زندگیوں میں ہے, خداوند کا کلام اگر ہماری زندگیوں میں ہے اور اگر ہم مدح سرائی کرتے ہیں, ہم تعریف کرتے ہیں اور یہوہ پاک خدا جو ہمارا آسمانی باپ ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیں چھوئے گی چیزیں نہیں, وہ آئیں گی لیکن آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. کیونکہ خدا کی حمد و ثنا کرنے سے, مدح سرائی کرنے سے خدا کا تخت لگتا ہے, اس کے پاک فرشتے آتے ہیں, اس کے شعلہ زن تلوار والے فرشتے آتے ہیں اور وہ ہیمرلی ہیمر جو خدا دشمنوں کے خلاف یوز کرتا ہے وہ فرشتے ہیمرلی ہیمر بھی لے کے آتے ہیں جو ان بونڈیجز کو بریک کرتے ہیں, ان دیواروں کو توڑتے ہیں. جہاں پر تلوار کام نہیں کرتی وہاں پر خدا کا ہتھوڑا کام کرتا ہے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. اس لیے ہمیں سارے دل, ساری جان, ساری طاقت سے خدا کے حکموں کو ماننا چاہیے, ان پر عمل کرنا چاہیے. whatever the circumstances, جیسے بھی حالات ہوں, whatever the influence, جو کچھ بھی اثرات ہوں, ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. بس اپنے خدا پر ایمان رکھنا چاہیے کیونکہ اس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. ہم نے ہاں کی, اس نے آلریڈی پرومسز کیے ہوئے ہیں تو وہ ہمیں اس فردوس میں, اس جنت میں, پیراڈائز میں, نئے یروشلم میں ہمیں لے کے جائے گا. ہاللویا. مختلف طریقے سے اور نافرمانی سے آسمان بند ہو جاتا ہے
शैतान भी, इब्लीस भी जोर लगा के आपकी बरकतों के खिलाफ, आपकी डिलीवरेंस के खिलाफ, आपकी रिहाई, आपकी रेस्क्यू के खिलाफ वो शैतान जो है काम करता है, आपके लिए आसमान को बंद कर देता है, जमीन की पैदावार को बंद कर देता है, और ये नाफरमानी के सबब से भी होता है, खुदा की नाफरमानी के सबब से भी होता है। मेरे साथ एक हवाला निकालिए, थोड़ा पूछा करो। मेरे साथ निकालिए अहबार की किताब लेविटिकस चैप्टर 26, अहबार की किताब और उसका 19वां बाब, 26वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत पढ़िए। जो भी पहले निकाल ले वो पढ़े खुदावंद के जलाल के लिए, और ऊंची आवाज में पढ़े। अहबार 26वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत, सिर्फ दोनों आयतें पढ़नी। हालेलुया। Leviticus chapter 26 verses commencing from the 19 to 20। जी पढ़िए। मैं तुम्हारी शहज़ोरी के फखर को तोड़ डालूंगा। मैं तुम्हारी शहज़ोरी के फखर को, यानी कि तुम्हारी ताकत के फखर को, प्राउडनेस को क्या कर दूंगा? तोड़ डालूंगा। ये नाफरमानी के सबब से खुदा कह रहा है। जब आप लेविटिकस के 26वें बाब पूरा पढ़िए, इस्तिस्ना की जो बुक है उसके 28वें बाब को पढ़िए, तो वहां पे जो कर्सिस का जिक्र है, लानतों का जिक्र है, वो उस वक्त आती है जब मैं या कोई भी शख्स खुदा से नाफरमान हो जाता है, बागी हो जाता है, रेबेलियन हो जाता है, खुदा के कलाम को छोड़ देता है और नाफरमानी करता है, हुक्म अदूली करता है, तो फिर क्या होता है? लानतें आती हैं। ये एक देखिए, ये है क्या? अभी बात पढ़िए बेटा। तुम्हारी शहज़ोरी के फखर को तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आसमान में और तुम्हारी शहज़ोरी के फखर को क्या कर दूंगा? कौन कह रहा है? खुदा फरमा रहा है। क्या फरमा रहा है? तुम्हारी ताकत जिसके ऊपर तुम्हें बड़ा घमंड, भरोसा, प्राउड है, तुम फख्र करते हैं, उसको क्या कर दूंगा? तेरी तालीम के ऊपर अगर तुझे इतना फख्र है, अपने जो एजुकेशन के ऊपर फख्र है, या सेहत के ऊपर फख्र है, या आपके विजडम और इल्म के वसीले से आपको बहुत फख्र है, वो कहता मैं इसको तोड़ डालूंगा। नाफरमानी जो लोग करेंगे उनको क्या कर देगा? उनको तोड़ डालेगा। जी आगे पढ़िए। और तुम्हारे लिए आसमान को लोहे की तरह, जमीन को पीतल की मानिंद कर दूंगा। और आसमान को पीछे बोलिए, अटेंटिव रहिए, मेरी तरफ अटेंटिव रहिए। और आसमान को किसकी मानद कर दूंगा? किसकी मानद कर दूंगा? खुदा कर देगा। नाफरमानी के सबब से लोहे का आसमान, आपके ऊपर लोहे का आसमान और जमीन, और आगे बढ़िए। और तुम्हारी कुव्वत बेफायदा सिर्फ होगी। और तुम्हारी कुव्वत बेफायदा, जितनी मर्जी कुव्वत लगा ले, जितने मर्जी ओवर टाइम कर लें, जितनी मर्जी नौकरियां कर लें, डबल ड्यूटियां कर लें, या बड़ा बिजनेस कर लें, आपका वो बिजनेस, आपका वो ओवर टाइम लगाना ला हासिल रहेगा। आपको घरों के अंदर बरकत नहीं आएगी, इसलिए आपकी जमीन पैदावार नहीं देगी, प्रोडक्शन नहीं देगी। खुदा ने आसमान को बंद किया हुआ, लोहे की से बंद किया हुआ, सख्त कर दिया, हार्ड कर दिया। पीतल की जमीन बनाई गई है जो आपकी पैदावार आपके घरों के अंदर, आपके दिलों के अंदर, आपके रोटी पानी को पूरा नहीं कर सकेगी। इसलिए फिर होगा क्या? आगे को क्योंकि तुम्हारी जमीन से कुछ पैदा ना होगा और मैदान के तरह फलने ही के नहीं, और मैदान के दरख्त फलेंगे नहीं, और जमीन आपको पैदावार नहीं देगी। जब जमीन पैदावार नहीं देगी, और सुनिए मेरी तरफ, आसमान से जो ब्लेसिंग, बरकतें, शफकत, रहम, फजल आता है, वो खुदा ने रोक दिया हुआ है, लोहे का आसमान कर दिया हुआ है। फिर उनको कहाँ फिर आप जाएंगे? हमारे अंदर तो इतनी ताकत, इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम क्या कर सके। हालेलुया, हालेलुया। ब्लेसिंग नहीं आ रही घरों के अंदर, जिंदगियों के अंदर,
ब्लेसिंग नहीं आ रही, बरकतें नहीं आ रही, इसलिए कि आसमान खुला ही नहीं है आपके लिए, मेरे लिए या किसी उस शख्स के लिए। जब आसमान ही नहीं खुला है तो किस तरह बरकतें आएंगी? आसमान खुदा ने बंद किया है, या किसी अपनी सी कुव्वतें भी आपके लिए इन सारी चीजों को बंद कर देती हैं। जब उनके लोकल, उनके एजेंट जादूगरी के जरिए से, इवल आल्टर के जरिए से, बुरे मजहबों के जरिए से आपके घराने के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी रोजी के ऊपर उस रोजी को बंद कर देते हैं जादू टूने के जरिए से, या इवल आल्टर आपके खिलाफ काम कर रहे होते हैं, तो फिर आसमान बंद उन्होंने किया हुआ, उसके ऊपर घेरा डाला हुआ। व्हाट यू विल डू दैट टाइम? उस वक्त आप क्या करोगे? हालेलुया। फिर एक ही पर्सनैलिटी है, फिर एक ही शख्सियत है जो आपको बचा सकती है। इसके अलावा कोई शख्स आपको नहीं बचा सकता। किसी की विजडम, किसी का इल्म, किसी की ताकत, किसी का नॉलेज, किसी का ग्रेटनेस होना, बड़ा होना, किसी का कद ऊंचा होना, वो आपको नहीं बचा सकता। खुदा बाप जो आसमान और जमीन का खालिक और वो आपको बचा सकता है। जिसने जमीन और आसमान को बनाया वही आपको बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह ने क्या कहा था? उसने कहा था जमीन और आसमान का कुल इख्तियार। कितना इख्तियार? कितना इख्तियार? कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। कितना इख्तियार? अब यीशु मसीह के पास कुल इख्तियार है, फुल अथॉरिटी, कंप्लीट अथॉरिटी। किसकी? जमीन की और जो कुछ उसके नाम से आप जमीन पर खोलोगे, आसमान पर क्या होगा? और जो कुछ जमीन पर आप बांध दोगे, लेकिन किस सबब से, कैसे खोल सकते हैं? जब तक आप तौबा नहीं करोगे, अपने गुनाहों से फिरोगे नहीं, रास्तबाज नहीं बनोगे, पाकीज़ा नहीं बनोगे, ये बुग़्ज़, नफरत, कीना, ये चुगलखोरियां, ये सारी चीजें अगर आपके दिल के अंदर हैं तो आप रास्तबाज नहीं बन सकते। रास्तबाज जो होता है, राइचियस पीपल जो होता है, वो रास्तबाजी के काम करता है। कौन से काम करता है? रास्तबाजी के काम करता है। और ये जितनी नफरत, कीना रखना या किसी दूसरे के लिए बुरी बातें कहना, ये रास्तबाज आदमी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। हमें इससे अवॉइड करना चाहिए, तौबा करना चाहिए। जब आप तौबा करेंगे, तो फिर रास्तबाजों की लिस्ट में आ जाएंगे। और जब तक आप तौबा नहीं करेंगे, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस फिर कर उस गुनाह से यीशु की सलीब पर के सामने नहीं जाएंगे और उसके खून की बहती धारा को अपने अंदर नहीं लेंगे, बार बार माफी नहीं मांगेंगे, अपने अंदर, अपनी फैमिली के अंदर उस जो खुदा यीशु मसीह का खून है उसको नहीं मांगेंगे, पाकीज़गी की रूह को नहीं मांगेंगे, उस वक्त तक आप उसी जाल में, उसी दलदल में, उसी गहराओं में पड़े रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जब रास्तबाज बन गए तो फिर क्या होता है? कलाम कहता है याकूब के खत 5वें बाब और उसकी 18वीं आयत में, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे पीछे बोलिए, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। किसकी दुआ से? सबकी दुआ से? सबकी दुआ से? सिर्फ रास्तबाज की दुआ से। इसलिए कि वो सिर्फ और सिर्फ सादिकों की दुआ पर उसके कान लगे रहते हैं। हालेलुया। कि कब वो दुआ करे तो कब मैं सुनूं। सिर्फ और सिर्फ रास्तबाज। God can do everything. खुदा हर चीज कर सकता है। लेकिन रास्तबाज जब दुआ करेगा तो उससे भी बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब रास्तबाज की दुआ के अंदर असर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फिर हमें क्या होना चाहिए? क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? रास्तबाज बनना चाहिए। पाकीज़गी की जिंदगी बसर करनी चाहिए।
रास्ते की जिंदगी बसर करनी चाहिए। और पाकीज़गी की जब जिंदगी बसर करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, खुदा की इबादत करेंगे, तो जब आप दुआ करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे और किसी के लिए भी करेंगे, तो उसकी जिंदगी के अंदर उस दुआ का असर हो जाएगा। हालेलुया। उस दुआ का क्या हो जाएगा? रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, बरकत पर बरकत दे। अब जब हम दुआ करते हैं, तो ये किसने हमें हक दिया कि हम दुआ करें? माजी बाप। कैसे दिया? आज वो सीखते हैं। पहला यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, पहली 12 आयतें पढ़िए, लेकिन ऊंची पढ़ेगा, बल्कि 12वीं आयती या 4वीं 12वीं आयत पढ़ते शॉर्ट हो गए। यूहन्ना की इंजील और उसकी 4वीं और 12वीं आयत पढ़ेगा। पहला बाब, फर्स्ट चैप्टर। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 11वीं और 12वीं आयत पढ़िए। जी, किसी ने निकाले तो मैं पढ़ने लगा। पढ़िए। और अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और जितनों ने उसे कबूल किया, किसको? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम ही मुजस्सम हुआ। उस मुजस्सम कलाम को, उस नूर को जिन्होंने कबूल किया, उसने, किसने? खुदा ने, आसमानी बाप ने उनको खुदा के फर्जंद यानी कि बेटे और बेटियां बनने का क्या कर दिया? राइट दे दिया, उनको राइट दे दिया, उनको हक दे दिया। अब ये जो बेटे और बेटियां हैं, अब जब ये बेटे और बेटियां हैं, जब दुआ करेंगे और कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, और यीशु मसीह के नाम के वसीले से उसके पास आएंगे तो उसके लिए आसमान खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए क्या हो जाएगा? आसमान खुल जाएगा। लेकिन अगर तू इसका बेटा और बेटी ही नहीं है, he have to know right to pray, उसके पास तो हक ही नहीं है कि वो इस टाइप की दुआ कर सके, आसमानी बात कहकर दुआ कर सके। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि उसने हमें ये हक बख्शा है कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। आमीन। हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं क्योंकि खुदा ने हमें ये हक बख्शा है। किसके वसीले से? खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से हमें ये हक बख्शा है, क्योंकि हमने उसको कबूल किया। यीशु मसीह की सलीब के खून से जो खून बहा, हमने कबूल किया एज ए सन ऑफ गॉड, खुदा के बेटे को हमने तस्लीम किया, माना। जब माना, तस्लीम किया, ईमान रख लिया, सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत के साथ ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। जब हम उसको मान लेते हैं तो फिर हमें वो हक दे देता है, हक दे देता है। हम उसके नाम से भी कहलाते हैं, खुदा बाप के नाम से कहलाते हैं। जब उसके नाम से कहलाते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर जो हमारे घरों के ऊपर, हमारी जिंदगियों के ऊपर, हमारे कैरियर्स के ऊपर इतनी जो मुसीबतें, दुख, तकलीफ होगी, तो फिर हम किस तरह उसको दूर कर सकते हैं? दूसरा तवारीख 2 क्रॉनिकल्स और उसका चैप्टर 7, दूसरा तवारीख 7वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। शॉर्ट करना, वरना 11वीं आयत से पढ़ के आप 14वीं आयत तक जा सकते हैं। दूसरा तवारीख 7वां बाब, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 7, उसकी 11वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक पढ़ना। लेकिन मेरे पीछे जिस तरह आपको बोलता है 11वीं आयत पढ़े, रुक जाए, पढ़िए।
सुलेमान ने खुदावन का घर और बादशाह का घर तमाम किया, और जो कुछ सुलेमान ने खुदावन के घर में और अपने घर में बनाना चाहा, उसने उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। आगे बढ़िए। और खुदावन रात को सुलेमान पर जाहिर हुआ और उसे कहा कि मैंने तेरी दुआ सुनी और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया कि ये कुर्बानी का घर हो। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं, अगर मैं कौन? खुदावंद खुदा। वो कहते हैं, खुदावंद खुदा कहते हैं कि अगर मैं आसमान को बंद कर दूं, वो खुदावंद खुदा, यहोवा पाक खुदा, आसमानी बाप, अगर वो आसमान को बंद कर दे तो कौन उसको खोल सकता है? किसमें इसकी इतनी हिम्मत है, कितनी इसमें किसी में इतनी ताकत और पावर है कि वो उसके सामने जोरावर कहलाए? कोई भी नहीं। वो कहता अगर मैं आसमान को बंद कर दूं, आगे अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, कि बारिश ना हो, दोनों बारिशें, रूहानी बारिश की, बरकतों की बारिश की और जमीन की पैदावार की बारिश की बात हो रही है, दोनों बारिशों की बात हो रही है जी। या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, ओ, या टिड्डियों को हुक्म दूं तो मुल्क को क्या कर दे? उजाड़ डालें। आजकल टिड्डी दल आया हुआ है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में टिड्डी दल आया हुआ है। टिड्डी दिल नहीं है, ये टिड्डी दल है, ग्रोह, ठीक है? टिड्डी दल आया हुआ है और वो फसलों को उजाड़ देता है, मिनटों में उजाड़ देता है फसलों को। और जब फसलें उजड़ जाएंगी, हरावल खत्म होगी, ग्रीनिश खत्म हो जाएगी, पैदावार खत्म होगी, तो काल हो जाएगा, फैमन हो जाएगा। आपके और मेरे घर के अंदर रोटी, पानी, आटा नहीं आएगा। हालेलुया। अगर खुदा बारिश को बंद कर दे, यानी कि आसमान को बंद कर दे, बरकतों को बंद कर दे, बरकतों को बंद कर दे, डिलीवरेंस को बंद कर दे, प्रॉस्पेरिटी यानी कि खुशहाली को बंद कर दे, रिस्टोरेशन को बंद कर दे, हीलिंग को, शिफा को बंद कर दे, क्योंकि ये सारी चीजें तो आसमान से आती है ना। तो जब आसमान उसने बंद कर दिया तो फिर तो ये सारी चीजें जो ब्लेसिंग की चीजें हैं, जो ऊपर से आती हैं, मेहरबानी, शिफा, रहम, फजल, वो बंद हो गया। तो फिर क्या होगा? इधर फसलें उजड़ गई टिड्डियों के सबब से, उधर बारिश नहीं हो रही, फसलें नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा? पढ़िए आगे बेटा। या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, या लोगों के दरमियान में वबा, कोरोना, ओहो, जिसका डर खौफ इतना है कि हर बंदा, हर बच्चा, हर बुजुर्ग डर रहा है। वबा, पेस्टिलेंसी, पैंडेमिक, ये कोरोना वायरस, ये एक वबा है, ये एक बला